الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا قاضي الحاجات تقضي حاجاتنا بجاه جمال سيد الكونين وبوسيلة سيدنا وغوث العالم الجيلاني البغدادي رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. الحمد لله قبل كل شيء. الحمد لله بعد كل شيء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أكرم المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا فتاح يا عليم دل مارا كن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الطہارت. المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد وماء العين. ثم المياه على 5 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو ما شرب منه الهر ونحوها وكان قليلا، وطاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته. ترجمہ پڑھ لو. کتاب الطہارت یہ خبر ہے، اس کا مبتدا یہاں پر محذوف ہے اور مبتدا ہوا ہے ھذا. ھذا کتاب الطہارت، یہ کتاب الطہارت ہے. تو ھذا مبتدا ہے اور کتاب الطہارت اس کی خبر ہے. اور طہارت کا لفظ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا لغوی معنی ہے اور ایک اس کا شرعی معنی ہے. لغوی معنی طہارت کا ہوتا ہے نظافت، صفائی اور ستھرائی. لیکن فقہ میں جب طہارت کا لفظ بولا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے ایسی نجاست سے پاکی حاصل کرنا کہ جس کے ہوتے ہوئے نماز ممنوع ہو، یا شریعت کا حکم جس کے ہوتے ہوئے منع ہو. مثلا نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مسجد میں جانا، یہ چیزیں ممنوع ہوں جس کی وجہ سے ان چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کا نام کیا ہے؟ طہارت ہے. تو اس کا لغوی معنی الگ ہے اور اصطلاحی معنی الگ ہے. ہر طہارت نظافت ہے مگر ہر نظافت طہارت نہیں ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی نے نہا لیا لیکن شریعت نے جن چیزوں کی پابندی لازم کی تھی اس اعتبار سے نہیں نہایا تو نظافت تو اس کو حاصل ہو گئی مگر طہارت حاصل نہیں ہوئی. طہارت اسی وقت حاصل ہوگی جب شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر طہارت حاصل کرے گا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو اب اس
जगह जब तहारत का बयान है तो अब ये जानना ज़रूरी है कि आदमी किस चीज़ से पाक हो सकता है। तो शरीयत ने उसके लिए दो तरीक़ा बताया है, एक पानी जिसके ज़रिए तहारत हासिल होती है, और दूसरी चीज़ पानी के न रहने की सूरत में मिट्टी है। समझ गए? पानी से तहारत हासिल करना ये किसी उम्मत के साथ ख़ास नहीं है, हर उम्मत और हर दौर में पानी से तहारत हासिल की जाती रही है, लेकिन मिट्टी से पाकी हासिल करने का हुक्म सिर्फ उम्मते मोहम्मदिया की है। समझ गए? ये खुसूसियत है इस उम्मते मोहम्मदिया की कि मिट्टी से भी पाकी हासिल करने का हुक्म दिया गया। और ये खुसूसियत और ये फजीलत जो इस उम्मते मोहम्मदिया को मिली वो भी हज़रत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन खदीजा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की बरकत है। और उनके सदक़े में जब आपका हार गुम हो गया था और लोग उस वक्त पानी तक नहीं पहुंच सके थे और नमाज फज्र पढ़ने की ज़रूरत थी, तो उस वक्त आयत तयम्मुम नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तो अब ये बरकत हज़रत आयशा की है जो पूरी उम्मत मोहम्मदिया को मिल रही है। समझा? तो मिट्टी से पाकी हासिल करना और तहारत हासिल हो जाना ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है। क्योंकि वो मिट्टी ये कब पाकी उससे हासिल की जाएगी? जब पानी नहीं रहेगा तब। तो पानी तहारत हासिल करने के लिए असल है और मिट्टी उसका नायब है। तो अब असल का जिक्र पहले होगा और नायब का जिक्र, इसीलिए पहले पानियों का जिक्र हो रहा है। तो पानी कई तरह के होते हैं। अब जिन पानियों से वज़ू करना और गुस्ल करना यानी तहारत हासिल करना दुरुस्त है, उसके बारे फरमाते अलमियाहुल्लती यजूज़ु तत्हीरू बिहा सबअतु मियाहिन। जिन पानियों से पाकी हासिल करना जायज़ है वो 7 किस्म के हैं, यानी 7 तरह के पानी ऐसे हैं कि जिनसे तहारत हासिल हो सकती है। माँ वाहिद है और अलमियाह उसकी जमा है। समझ गए? और ये जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, इसलिए अल्लती मुअन्नस का सेगा लाया गया है। और अत-तत्हीर ये यजूज़ो का फ़ाइल है, और तत्हीर चूँकि मुज़क्कर है इसलिए यजूज़ो मुज़क्कर सेगा लाया गया, और बिहा में हा ज़मीर का मर्जा वही अलमिया है। और सबअतु मियाहिन मुज़ाफ़ से मिल करके ये पूरी जुमले की क्या है? खबर है। जिन पानियों से पाकी हासिल करना जायज़ है वो सबअतु मियाहिन। कितने पानी है? माउस समाए, आसमान का पानी, ये जो बारिश हो रही है। एक गिलास का पानी यही होता है शरई एतबार से, एक गिलास का पानी इसी को माना जाता है। और तिब्बी नुक्ते नज़र से भी, डॉक्टरी एतबार से भी एक गिलास का पानी यही होता है। फिल्टर दर फिल्टर हो करके ये आता है। अगर इसको बर्तन में सीधे आप ले लें तो जाहिर सी बात है कि उसमें गर्द गुबार या ज़मीन की कोई उसके अंदर नजासत या ज़मीन की कोई आमेजिश नहीं होती है। और ये बना है कैसे? भाप जो समंदर में ज़्यादा तैयार होती है, ये भाप ऊपर जाती है ऊपर के धूप की वजह से। तो जब ये ऊपर जाती है भाप, तो ऊपर जा करके ये भाप जम जाती है। समझ गए? ठंडक में जा करके जम जाती है। तो जब जम जाती है तो वही बादल कहलाती है। और उसके बाद में जब फिर उसके अंदर हरारत और गर्मी पहुंचती है तो वो टपकने लगता है, तो वो बारिश कहलाते हैं। तो ये नीचे ही से ऊपर जाता है और ऊपर से फिर नीचे आता है ना। तो एक तो समंदर का पानी हुआ, तो वैसे ही उसके अंदर न जान सारी गंदगी चली जाए तभी वो पाक हो जाए, है ना। और उसमें से भाप निकली तो ये फिल्टर हो करके गोया ऊपर की तरफ जाए और जा करके बिल्कुल फजा में वो जम गई, और उसके बाद फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसमें मिट्टी उट्टी की कुछ भी आमेजिश नहीं होती है। इसलिए एक गिलास का पानी होता है जो बारिश के वक्त टपकता है, ये जो बारिश में होता है जब तक ज़मीन पे नहीं गिरता है। अगर उसको बर्तन में ले लिया जाए तो सबसे ज़्यादा फिल्टर वाला पानी वही होता है, माउस समाए। समझ गए? आसमान का पानी। वह और वह माउल बहरे, समंदर का पानी।
وماء النہر دریا کا پانی ہے نا، سمندر اور ندی دونوں میں فرق ہے. ہاں بڑے کو سمندر کہا جاتا ہے، اسے چھوٹے کو وماء البیر اور کنویں کا پانی. وما ذاب من الثلج والبرد اور اولے اور پتھر سے جو پانی پگھل کر کے ہو جائے. وماء العین اور چشمے کا پانی. ان سارے پانیوں سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ سب اعلیٰ قسم کے پانی ہیں، اور ان میں درجہ سب سے بڑا بارش کا پانی سب سے اعلیٰ قسم کا پانی ہے. سمجھ گئے؟ یہ 7 قسمیں ہیں پانیوں کی جن سے طہارت حاصل کرنا. اللہ برکت. پڑھو.